جنگ جلد ہی ختم ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو انٹرویو۔ جنگ کے اہداف تک پہنچنے کا بھی دعویٰ۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ ایک طویل مدتی جنگ کے لیے تیار ہے جو پوری امریکی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے تہران سمیت ایران کے متعدد شہروں میں رہائشی عمارتوں پر حملے، ایران کی بھرپور جوابی کارروائی۔ اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائل برسا دیے۔ اسرائیلی گرین پائن ریڈار سمیت کئی اہم فوجی اہداف پر ڈرون حملے۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام۔ جنوبی تل ابیب میں واقع سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز کو دوسری بار نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں خیبر شکن، قدر اور خرم شہر میزائل استعمال کیے گئے۔ ایران نے میزائل حملوں کی تازہ لہر میں خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملوں میں مزید 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی بینک پر حملے کے بعد ایران کا خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے اقتصادی اور بینکاری مفادات کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ اپنی ناکام مہم کے بعد امریکی فوج اور اسرائیل نے ایران کے ایک بینک کو نشانہ بنایا۔ رہائشی علاقوں پر حملوں کا بدلہ لیں گے۔ امریکی اور اسرائیلی مفادات حملوں کا ہدف ہوں گے۔ ایرانی مشترکہ کمانڈ کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری۔ صدر آصف علی زرداری کی نیپال کے عام انتخابات میں تاریخی فتح پر قومی آزاد پارٹی کو مبارکباد۔ نئی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ انتخابی عمل میں نوجوانوں کا متحرک کردار خوش آئند اور اصلاحات کی عوامی خواہش کا عکاس ہے۔ پاکستان نیپال کے ساتھ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعاون مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ صدر مملکت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی نیپال کے انتخابات میں کامیابی پر قومی آزاد پارٹی کے رہنماؤں کو مبارکباد۔ مضبوط عوامی مینڈیٹ نیپال کے عوام کا متحرک قیادت پر اعتماد کا عکاس ہے۔ پاکستان نیپال کی نامنتخب حکومت کے ساتھ تاریخی دوستی کو مزید مستحکم بنانے کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان کا رابطہ۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش، علاقائی امن و استحکام پر اثرات اور نتائج پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی سے متعلق کمیٹی کا اجلاس۔ تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو اقدامات پر سختی اور شفافیت کے ساتھ عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ مالیاتی نظم و ضبط کو فروغ دینا اور سرکاری وسائل کا دانش مندانہ استعمال حکومت کی ذمہ دارانہ طرز بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ نائب وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ازبکستان کے صوبے تاشقند کے گورنر کی 7 رکنی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ پنجاب اور تاشقند کو برادر صوبہ قرار دینے پر اتفاق۔ خصوصی کمیٹی تشکیل۔ ثقافت، زراعت، لائف اسٹاک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ سمرقند ماضی کی طرح آج بھی علم و ہنر کا مرکز و محور ہے۔ محمد نواز شریف لاہور میں ازبک کوزین ریسٹورنٹ پاکستان کی ازبکستان سے محبت کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید کے بعد اسلحہ کلچر کے خاتمے کی بھرپور مہم کا حکم۔ پنجاب میں اسلحہ نمائش اور ناجائز استعمال کے سدباب کے جامع ایکٹ کی منظوری دے دی۔ نئے ایکٹ میں ہر قسم کے ناجائز اسلحے کے خاتمے کی شکیں شامل۔ نئے ایکٹ کے نفاذ کے بعد ناجائز اسلحہ CCD کو جمع کروانا ہوگا۔ لائسنس یافتہ اسلحہ بردار شہری کو بھی اسلحہ رکھنے کی معقول وجہ بیان کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاع اور ہوابازی کے شعبوں میں تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مربوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان اور برطانیہ کے درینہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के साथ वर्चुअल इजलास। हुकूमत मौजूदा सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। मुमकिन माशी असरात का जायज़ा लेने के लिए आला सतह राबता निज़ाम कायम किया है। ज़रूरी अशिया की फराहमी के तसलसल और मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए बर वक्त और मुख्तार इक़दाम किए जाएंगे। करीबी रवाबित और मौसर हमआहंगी के ज़रिए मालियाती इस्तेहकाम और माली खदमात की बिला तात्तुर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़जाना। ऑपरेशन गज़ब दिल हक भरपूर तरीके से जारी है। अब तक तालिबान रजीम के 641 कारिंदे और खारिज मारे जा चुके हैं। 855 से ज्यादा जख्मी हैं। तालिबान रजीम की 243 पोस्टें तबाह कर दी गई और 42 पाकिस्तान के कब्जे में हैं। दुश्मन के 219 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। पाक फिजाइया ने तालिबान के 65 ठिकानों को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयाँ। पाक फौज ने शवाल से मुल्हिका पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान के पोस्ट को निशाना बनाया। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह कर दी। पाक फौज ने अफगान सरहद पर यूब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को भी निशाना बनाया। बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्ट ने असला छोड़कर फरार। रूसी साख्ता 73 मिलीमीटर हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स बरामद। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान के लिए अमरीका का सफरी इंतबाह। अफगानिस्तान के लिए अमरीका की बुलंद तरीन दर्जे की ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 4 यानी हरगिज़ सफर न करें पर बरकरार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान को भेजा और गैर कानूनी हिरासत की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार दे दिया। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने मार्को रूबियो के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए सफरी इंतबाह जारी किया। अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को संगीन खतरात लाहिक हैं। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। किफ़ायत शारी इक़दामात की मंजूरी। सरकारी अखराजात कम करने और ईंधन की बचत के लिए जामे पॉलिसी नाफिज। सूबाई वज़रा, मुशीरान और पार्लिमानी सेक्रेटरीज 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 25% रज़ाकाराना कटौती की मंजूरी। 23 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वसाइल अवामी फलाह पर खर्च होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर काबीना का मुज़फ़्फ़राबाद में इजलास। वफाकी किफ़ायत शुआरी पॉलिसी की तौसीक़ कर दी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन के इस्तेमाल में 2 माह के लिए 50% कमी का फैसला। वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी 2 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 20 से ऊपर अफसरों की 4 दिन की तनख्वाह की कटौती। दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ घर से काम करेगा। तालीमी इदारों में तातीलात का फैसला। पाकिस्तान के ज़रई तहकीकाती निज़ाम में जामे इस्लाहात का ऐलान। तहकीकाती इदारों को आलमी मयार के मुताबिक बनाने और पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दामात का फैसला। वफाक और सूबों के दरमियान कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कमर्शलाइजेशन को तेज़ करना वक्त की अहम ज़रूरत। तहकीक के नताज की बरवक्त मार्केट तक मुंतकली किसानों, सनत और बरामदात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन। साइबर सिक्योरिटी असरे हाजिर में इंतहाई अहम है। टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साइबर सिक्योरिटी के खतरात भी बढ़ रहे हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन में साइबर सिक्योरिटी पर भी तवज्जो मरकूज है। हम डिजिटल इकॉनमी की जानिब गामजन है। महफूज डिजिटल पाकिस्तान हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में साइबर सिक्योरिटी तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। करतारपुर और ननकाना साहब को मोटरवे से मुंसलिक करने के मनसूबे का जायज़ा। लाहौर सियालकोट 2 लेन के मोटरवे को 3 लेन के मनसूबे पर जल्द काम शुरू करने का फैसला। सियालकोट से खारियाँ और इस्लामाबाद मोटरवे भी 3 रोया बनेगी। हमें मुस्तकबिल की सफरी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर मनसूबे बनाने हैं। वज़ीर मवासलात। आबनाए हुर्मज़ और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। मिसाइल या प्रोजेक्टाइल हमलों का निशाना बनने वालों में थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज शामिल। हमले के नतीजे में जहाज़ों में आग भड़क उठी। अमला महफूज रहा। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी।
अमरीकी सदर का अबनाए हरमुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ करने का ऐलान। अबनाए हरमुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई गई तो फ़ौरन हटा दी जाएँ। सुरंगें ना हटाई गईं तो ईरान को ऐसे नताज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अफवाज ने अबनाए हरमुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं की। ईरान पर हमलों के बाद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मसूद पेज़ेश्कियान का रूस की हिमायत पर शुक्रिया। व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए सियासी ज़राए के इस्तेमाल पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। कशीदा सूरत हाल में हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर बातचीत। तैयब एर्दोगान का सफारतकारी का दरवाज़ा दोबारा खोलने की ज़रूरत पर जोर। नए रहबर आला मुश्तबा खामेनाई के मुंतखब होने से खत्ते के अमन व इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। पाकिस्तान की कीमियाई हथियारों के कन्वेंशन की आलमी सतह पर हिमायत। शाम की खुदमुख्तारी और वहदत के लिए पाकिस्तान की मजबूत हिमायत। मुफाहमत और अमन के लिए आलमी ताउन और सियासी अमल की अहमियत पर जोर। कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किसी भी शख्स या मुल्क के लिए नाकाबिल कबूल है। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। भारतीय मुजरिमाना नेटवर्क्स के गिर्द घेरा तंग। अमरीका में मजीद भारतीय शहरी गिरफ्तार, मुल्क बदरी का हुक्म। भारतीय शहरी जसकरण सिंह संगीन मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार। एक रोज़ कबल एक और मुजरिम भारतीय शहरी जशनप्रीत सिंह भी सान डियागो में गिरफ्तार हुआ। भारतीय शहरी दहशतगर्दाना वाक़यात और दीगर संगीन मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस हैं अमरीकी हुक्काम। भारतीय मुनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क्स मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं माहिरीन। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ। कश्मीरी माह मुकद्दस में भी मुश्किलात और मसाइब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। काबिज भारतीय इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहरे। तनाज़े कश्मीर के हल के हवाले से भारतीय हठधर्मी ने पूरे जनूबी एशियाई खित्ते को एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर रखा है। तनाज़े कश्मीर हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन व तरक्की का ख्वाब हरगिज़ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। Shot wide and taken. Little bit of weight. Edge. Not like that. He's been adjusted. Goes big on the leg side. ढाका में पहला वनडे पाकिस्तानी टीम का फ्लॉप शो, बदतरीन कारकर्दगी। बांग्लादेश 8 विकेटों से कामयाब। ग्रीन शर्ट 31वें ओवर में बांग्लादेश के खिलाफ कम तरीन स्कोर 114 पर ढेर। सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक पहुंच पाए। बांग्लादेश के नाहिद राना की 5 और मेहदी हसन की 3 विकेटें। मेजबान टीम ने हदफ 209 गेंदे कबल यानी 16वें ओवर में ही 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले चारों खिलाड़ी मुकम्मल फेल। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर रहा। Bangladesh have crossed Pakistan's 114. पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की ट्रॉफी की रुनमाई। ट्रॉफी का नाम इन्फिनिटी रखा गया है। पीएसएल 26 मार्च से 3 मई तक 6 शहरों में खेला जाएगा। 2 नई टीमों की शमूलियत के बाद पहली बार 8 टीमों के दरमियान 44 मैचेस खेले जाएंगे। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार मेजबानी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम की लाहौर में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 8 बरस बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। हॉकी प्लेयर्स को मुलाजमतें दी जाएंगी। जख्मी हॉकी प्लेयर्स का इलाज पीसीबी कराएगा। फिटनेस और मेडिकल के हवाले से हॉकी प्लेयर्स को पूरा सपोर्ट करेंगे मोहसिन नकवी। ईरान फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगा। मौजूदा हालात में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत मुमकिन नहीं।
हमारे लीडर को कत्ल किया गया, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, हम किसी सूरत वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर सकते। ईरानी वज़ीर खेल अहमद दुनिया माली, फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, भारतीय बॉलर अर्शदीप सिंह पर मैच फीस का 15% जुर्माना। न्यूजीलैंड के इनिंग्स के 11वें ओवर में अर्शदीप ने जारहाना और नामुनासिब अंदाज में गेंद फेंकी जो कीवी बैटर डेरल मिचेल को लगी थी। अर्शदीप के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट का भी इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप ने टेलीफोनिक इंटरव्यू में अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को बताया कि जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी क्योंकि ईरान में निशाना बनाने के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं बचा। मैं चाहता हूं कि ये खत्म हो जाए। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो एक तवील मुद्दती जंग के लिए तैयार है जो पूरी अमरीकी मईशत को तबाह कर देगी। तफसील बताएंगे यासिर हुसैन। इसराइल और अमेरिका की जानिब से तेहरान समेत ईरान के मुतादिद शहरों में रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान में अमेरिकी और इसराइली हमलों में अब तक 1300 से जायद अफराद शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं। ईरान की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई भी जारी है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ मिसाइल हमलों की 39वीं लहर का आगाज कर दिया है। ईरान ने इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली दिफाई निजाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइली ग्रीन पाइन रडार समेत कई अहम फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमले भी किए गए। एक इसराइली ओहदेदार ने ईरान के नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के जख्मी होने का दावा किया है। ईरानी सदर के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान की जानिब से टेलीग्राम पर जारी पैगाम में कहा गया है कि ऐसी इतलात मिली हैं कि नए रहबर आला जख्मी हैं, ताहम अल्लाह के फजल से वो महफूज हैं और परेशानी की कोई बात नहीं। तेहरान में ईरानी बैंक पर हमले के बाद ईरान ने खित्ते में अमेरिका और इसराइल के इक्तिसादी और बैंकारी मफादात को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ईरान की मुश्तरका कमांड के तर्जमान इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा है कि अपनी नाकाम मुहिम के बाद अमेरिकी फौज और इसराइल ने ईरान के एक बैंक को निशाना बनाया है। अब ईरान भी खित्ते में अमेरिका और इसराइल से जुड़े इक्तिसादी और बैंकारी मफादात को अपने हमलों का हदफ बनाएगा। अमेरिकी फौज ने आबनाए हुर्मुज के करीब ईरान के बारूदी सुरंगें बिछाने वाले 16 बहरी जहाजों को तबाह करने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के बारूदी सुरंगें बिछाने वाले 10 बहरी जहाज तबाह किए हैं।
انہوں نے تہران کو متنبہ کیا کہ اگر آبنائے ہرمز کو نشانہ بنایا گیا تو اسے بے مثال فوجی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں 3 بحری جہازوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ میزائل یا پروجیکٹائل حملوں کا نشانہ بننے والوں میں تھائی لینڈ، جاپان اور مارشل آئی لینڈ کے پرچم بردار جہاز شامل ہیں۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق حملے کے نتیجے میں جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے، تاہم عملہ محفوظ رہا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری نے نیپال کی قومی آزاد پارٹی کو تاریخی انتخابی فتح پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل میں نوجوانوں کا متحرک کردار خوشائند اور اصلاحات کی عوامی خواہش کا عکاس ہے۔ نیپال میں نوجوان قیادت کا ابھرنا جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کے لیے ایک مثبت پیغام ہے۔ صدر مملکت نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بطور کم عمر ترین وزیر اعظم میراث کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نیپال میں بھی نوجوان وزیر اعظم کا انتخاب خطے کے لیے ایک خوشائند پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نیپال کے ساتھ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعاون مزید گہرا کرنے کا خواہاں ہے۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیپال کے انتخابات میں کامیابی پر قومی آزاد پارٹی کے رہنماؤں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے روی لامیشیلا اور بالندر شاہ کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مضبوط عوامی مینڈیٹ نیپال کے عوام کا متحرک قیادت پر اعتماد کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نیپال کی نامنتخب حکومت کے ساتھ تاریخی دوستی مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ ازبکستان کے صوبے تاشقند کے گورنر وفد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف سے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب اور تاشقند کو برادر صوبہ قرار دینے اور سیاحت، زراعت، لائف اسٹاک سمیت دیگر شعبوں میں معاشی تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ ازبکستان سے سماجی اور معاشی تعلقات مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں زراعت، صنعت، سوشل سیکٹر اور انفراسٹرکچر میں بہتری کے لیے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ صوبے میں زراعت اور لائف اسٹاک کی ویلیو ایڈڈ مصنوعات پر توجہ دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے کہا کہ سمرقند ماضی کی طرح آج بھی علم و ہنر کا مرکز و محور ہے۔ متحدہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ فرغانہ سے ہندوستان آئے، آج بھی ان کی متاثر کن حکمرانی کی داستان پڑھی جاتی ہے۔ گورنر تاشقند نے لاہور میں مغل دور کی تاریخی عمارتوں کی بحالی پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا اور انہیں دورہ ازبکستان کی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان کے مابین ٹیلی فونک رابطے کے دوران مشرق وسطیٰ اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام پر جنگ کے اثرات اور اس کے نتائج پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم کے اعلان کردہ کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ان اقدامات میں وفاقی کابینہ کے ارکان کی جانب سے تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ، مختلف وزارتوں اور محکموں کے اخراجات میں کمی اور 3 لاکھ روپے یا اس سے زائد تنخواہ لینے والے اعلیٰ سرکاری افسران کی تنخواہوں سے کٹوتی شامل ہے۔ صوبائی حکومتوں کو بھی ان اقدامات سے آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ وفاق اور صوبوں کی سطح پر مربوط انداز میں عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو ہدایت کی ہے کہ کفایت شعاری اقدامات پر سختی اور شفافیت کے ساتھ عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مالیاتی نظم و ضبط کو فروغ دینا اور سرکاری وسائل کا دانشمندانہ استعمال حکومت کی ذمہ دارانہ طرز حکمرانی کے عزم کا اہم حصہ ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں نجکاری کی کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن لمیٹڈ کے نجکاری کے عمل میں عارف حبیب کارپوریشن کی قیادت میں قائم کنسورشیم میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کو بطور اضافی رکن شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ نجکاری کمیٹی نے بولی کے دستاویزات کے طے شدہ شرائط کے مطابق اس شمولیت کی بھی توثیق کی۔ طے شدہ فیصلے کے مطابق فوجی فرٹیلائزر کمپنی PIA ایکویٹی لمیٹڈ کے 33.9% عام حصص حاصل کرے گی، تاہم کنسورشیم کی سربراہی بدستور عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کے پاس ہی رہے گی۔ کابینہ کمیٹی کے اس فیصلے کو حتمی توثیق کے لیے وفاقی کابینہ کو ارسال کیا جائے گا۔
ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान अब तक 641 दहशतगर्द हलाक और 855 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं मज़ीद तफसील ज़ीशान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान तालिबान और फितरतुल ख्वारिज के खिलाफ पाक अफवाज की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने अफगान तालिबान के नुकसानात के हवाले से बयान में कहा है कि ऑपरेशन के दौरान अब तक 641 दहशतगर्द हलाक जबकि 855 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाक अफवाज की जानिब से 243 चेक पोस्टें तबाह और 42 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गई हैं। 219 टैंक, बख्तर बंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह की जा चुकी हैं। अफगानिस्तान में 65 दहशत गर्दों के ठिकानों और मावन मकामात को फिजाई कार्रवाइयों में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज ने ऑपरेशन के दौरान पाक अफगान सरहद पर योब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को निशाना बनाया। पाक फौज की बरवक्त और भरपूर कार्रवाई से बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें और असला छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज ने अफगान तालिबान के जेर कब्जा पोजीशनों से रूसी साख्ता 73 मिलीमीटर हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिए। एक और कार्रवाई में पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान से मुहलिका पाक अफगान सरहद पर भी अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज की ताकतवर जवाबी कार्रवाइयां भारतीय प्रॉक्सी अफगान तालिबान और फितरतुल ख्वारिज को भागने पर मजबूर कर रही हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है और अपने अहदाफ के असूल तक जारी रहेगा। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल समेत मुस्तकबिल में ताउन बढ़ाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और हवाबाजी के शोबों में शराकत दारी पर भी बात हुई। वज़ीर दिफा और बरतानवी हाई कमिश्नर ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दोनों ममालिक के दरमियान दरीना शराकत दारी के फ़रोग देने के लिए तामीरी राबतों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। और वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन का वर्चुअल इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि हुकूमत आलमी मार्केट, सप्लाई चेन और तवानाई के शोबे में होने वाली तब्दीलियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। इस मकसद के लिए एक आला सतह का कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कायम कर दिया गया है। हुकूमत इफ़रात ज़र, बैरूनी खातों और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर पड़ने वाले असरात का बाकायदगी से जायज़ा ले रही है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बरवक्त फैसले किए जाएँ। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत ज़रूरी अशया की फ़राहमी और मौशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ राब्ते में है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमें बतदरीज एक ऐसे मुतवाज़िन मालियाती निज़ाम की तरफ बढ़ना है जहाँ कैपिटल मार्केटें बैंकिंग सेक्टर के साथ मिलकर मईशत की माली ज़रूरियात पूरी करें। उन्होंने कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए नागुज़ीर करार दिया। कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल के इजलास के दौरान वज़ीर ख़जाना ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को हुक्म दिया कि वह हालिया रेगुलेटरी इस्लाहात, आसान दस्तावेज़ात और सहूलियात के बारे में कॉरपोरेट इदारों और सरमायाकारों को आगाह करने के लिए आगाही मुहिम तेज़ करे। इजलास में बताया गया कि वज़ारत ख़जाना का टैक्स पॉलिसी ऑफिस सरमायाकारों और कंपनियों पर असरअंदाज होने वाले टैक्स मसाइल का जायज़ा ले रहा है ताकि टैक्स ढांचे को माकूल बनाया जा सके। इजलास में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक और दीगर इदारों के नुमाइंदों ने ब्रीफिंग में बताया कि रेगुलेटरी फीसों में कमी और जारी करने के अमल को डिजिटल करने जैसे इक़दाम पहले ही किए जा चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वफाकी वज़ीर शुजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि मुल्क में डिजिटल तरक्की और बैरूनी सरमायाकारी के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम नागुज़ीर है। उन्होंने बताया कि 32 से ज़ायद सरकारी खिदमात को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जा चुका है और नादरा की दस्तावेज़ात मोबाइल ऐप्स के ज़रिए हासिल की जा सकती हैं। जब तक लोगों को पता ही नहीं है कि साइबर थ्रेट है तो उसके बारे में करेंगे क्या। हाउ टू कीप योर सेल्फ सेफ, आपके पासवर्ड्स कैसे होने चाहिए, सेम पासवर्ड्स ना रखें हर चीज़ के ऊपर, सिंपल पासवर्ड्स ना रखें। हाउ टू मेक श्योर कि आपकी आइडेंटिटी सिक्योर है, आपकी फैमिली सिक्योर है। ये अवेयरनेस कैंपेन्स मीडिया को हमारा हैंड इन ग्लव वी हैव टू वर्क टुगेदर कि वो क्या क्या पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स एज इंडिविजुअल भी फेस कर रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, कौन सी नहीं करनी। आज हर शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर दे यूजिंग द चैट जीपीटीज एंड क्लॉड्स एंड डीप सीक्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो डेटा जो है वो कौन सा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं भेजना, उसके अंदर क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स रखने, ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू बी एसेंशियल। वफाकी वज़ीर IT ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी हर शहरी की ज़ाती शनाख्त, ज़ाती सलामती, घरों और ख़ानदानों की हिफाजत से लेकर कौमी सलामती तक तमाम पहलुओं से जुड़ी हुई है।
हुकूमत साइबर सिक्योरिटी के लिए खुसूसी वसाइल और इदारा जाती निज़ाम मजबूत बना रही है ताकि पाकिस्तान को डिजिटल मईशत में महफूज और मुस्तहकम बनाया जा सके। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी का आगाज महज एक तकनीकी पेशरफ्ती नहीं बल्कि IT और डिजिटल शोबे के लिए इनकलाबी संग-मील है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सईद वजीर। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में तेज रफ्तार इंटरनेट तरक्की का बुनियाद बन चुका है। 5G का आगाज पाकिस्तान को डिजिटल मईशत की तरफ तेजी से लेके जा सकता है। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी तकनीकी पेशरफ्त के साथ मुल्क की मईशत के लिए एक अहम संग मील साबित हो रही है। पाकिस्तान में पहली बार ये मल्टी बैंड ऑक्शन हुआ। इसमें हर वो स्पेक्ट्रम बैंड रखा गया जिसको इस्तेमाल करके ऑपरेटर बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकते हैं, मार्केट की डिमांड पूरी कर सकते हैं। इस स्पेक्ट्रम के जरिए, इस टेलीकॉम नेटवर्क की फाउंडेशन के जरिए वो उनको मिलेगी। फाइनेंशियल इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होंगे क्योंकि जब ये आपके नए बैंड डिप्लॉय होंगे, आपको ऑपरेटर्स को नए इंजीनियर्स चाहिए होंगे, उनको नया स्टाफ चाहिए होगा। 1000 के करीब नए टावर्स उन्होंने लगाने हैं, ऑप्टिकल फाइबर बिछानी है 5G को सर्विसेज को चलाने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT से मुंसलिक खिदमात का शुबा पाकिस्तान में तेजी से तरक्की कर रहा है। बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस शोबे को मजीद तकवीत देगा जिससे IT बरामदात में इजाफा और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होने की तवक्को है। 5G का पहले गो के अंदर 1 साल के अंदर हम 5 बड़े शहरों में जाएंगे जो कि प्रोविंशियल कैपिटल और फेडरल कैपिटल है, और विद इन नेक्स्ट ईयर वी विल गो टू 10 बिग सिटीज इन पाकिस्तान विद 5G सर्विस। बलूचिस्तान में ख़वातीन की यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि जो चूँकि नंबर ऑफ साइट्स बहुत कम थी तो बहुत कम यूजेज था। विमेन फोक के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, उससे उनको कारोबार में आसानी मिलती है। वो तमाम हैंडीक्राफ्ट या प्रोडक्ट्स वो घर में तैयार करती हैं, उनको उस मार्केट तक रसाई मिल जाती है डायरेक्टली। 5G टेक्नोलॉजी से कारोबारी सरगर्मियों को नई जहत मिलेगी, तजारती पाया मजीद मजबूत होगा और कौमी मईशत को एक मजबूत सहारा हासिल होगा। बेहतर डिजिटल राब्ताकारी के जरिए अवाम को कम लागत और मेयारी खदमात मुयसर आएगी जिससे मईशत के मुख्तलिफ शोबों में नए मौके पैदा होंगे। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि ईरान में हालिया सूरत हाल के सबब हवाएं आलूदा ज़र्रात पाकिस्तान के मगरबी हिस्सों तक पहुंचा सकती हैं जिससे वहां फ़ज़ाए मेयार मुतासर होने का खदशा है। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई और मगरबी इलाकों को मुतासर कर रहा है जो कि 12 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट मजीद कहती है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और खित्ता पठवार में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान चंद मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान भी मौजूद है। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के मौसम की बात की जाए तो बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और खित्ता पठवार में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में कदरे गर्म रहा। सबसे ज़्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड की गई और रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मिट्टी छोर 40, हैदराबाद, टंडोजाम 39 और शहीद बेनज़ीराबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद 28, लाहौर 32, कराची 32, पेशावर में 27, कोयटा में भी 27, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, गिलगित 22, स्कर्दू 15, मुजफ्फराबाद 28, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। और बढ़ते हैं कुछ दीगर खबरों की जानिब। ताशकंद के गवर्नर और पाकिस्तान में ताजिकिस्तान के सफ़ीर अली शेर ने 20 रुकनी वफ्द के हमरा ऐवान सनअत व तिजारत लाहौर का दौरा किया।
ताशकंद रीजन के गवर्नर ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मौसी ताउन बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा 445.8 मिलियन डॉलर की तजारत इनकी हकीकी सलाहियत की अक्कासी नहीं करती। ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, सियाहत, लॉजिस्टिक्स और सनती सरमायाकारी के शोबों में मजबूत शराकतदारी की ज़रूरत है। उज़्बेकिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर अलीशेर तख्तायोफ ने भी खैर सगाली ताल्लुकात को मजबूत मौशी ताल्लुकात में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने इस दौरे को पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान इदारा जाती और कारोबारी रवाबित मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम करार दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में सिंध के वज़ीर आला के साबिक मुआविन खुसूसी बंगल खान महर और पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के सदर मीर बाबर खान ने मुलाकात की और सियासी सूरत हाल के बारे में बताया। बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मुलाकात की। मुलाकात में शाहराह भुट्टो से शाहराह फैसल जाने के लिए अजीमपुरा इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मेयर कराची ने मलीर में खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर के हवाले से ब्रीफ किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ अजला में मुहासिर तलाशी की कार्रवाइयों और छापों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक राजौरी, सांबा, खटुआ, जम्मू, पूंछ, कुपवाड़ा और दीगर इलाकों में तलाशी ऑपरेशन जारी हैं। कश्मीरी माह मुकद्दस में भी मुश्किलात और मसाइब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता रोज़ भी जिला राजौरी के इलाके झंगड़ में ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान को शहीद कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि तनाज़े कश्मीर के हल के हवाले से भारतीय हठधर्मी ने पूरे जनूबी एशियाई खित्ते को एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर रखा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि तनाज़े कश्मीर हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन और तरक्की का ख्वाब हरगिज़ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तर्जुमान ने काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया की तरफ से कश्मीरियों की जायदादों की मुसलसल जब्ती, मुलाजमीन की बरतरफी और जबरो इस्तबदाद के दीगर हथकंडों की शदीद मसम्मत करते हुए कहा कि भारत के जबर के बल पर जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखने की पॉलिसी पर बदस्तूर अमल पैरा है, लेकिन वो अपने मज़मूम मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। दूसरी जानिब जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास के मौके पर एक मुबाहिसे के मुकर्ररीन ने मुतनाज़ा खित्तों पर मुसलसल गैर मुल्की कब्जे और मौसमियाती तब्दीली के दरमियान ताल्लुक़ पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मौसर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा खित्तों के अवाम के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा में जारी बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो का नतीजा करार दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने वफाकी हुकूमत के हालिया किफ़ायतशारी पॉलिसी की तौसीक करते हुए सरकारी अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा 2 माह के लिए वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी तनख्वाहें नहीं लेंगे। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 25% कटौती होगी और आला सरकारी अफसरान की 4 दिन की तनख्वाह अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। काबीना ने सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में 50% कमी, गैर ज़रूरी खरीदारी और सरकारी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। तमाम महकमों में टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी और दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। तेल की बचत और अवामी सहूलत के लिए स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे और हायर एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि तमाम तहकीकाती इदारों के दरमियान मजबूत हम आहंगी और क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच नागुज़ीर है ताकि साइंसी तहकीक के समरात बराह रास्त किसानों और सनत तक पहुँच सकें। इस्लामाबाद में ज़रई तहकीकाती निज़ाम में इस्लाहात के हवाले से इजलास में वफाकी वज़ीर ने कहा कि कौमी तहकीकाती निज़ाम को मौसर और नेटवर्क जदीद बनाना हुकूमत का पुख्ता आज़म है। चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने मुजव्वज़ा इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफ किया। कानून इंसाफ के वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ से नारोवाल, लोधरा, झंग और हाफिज़ाबाद बार एसोसिएशन के सदूर और नौमुंतखब ओहदेदारान ने मुलाकात की। मुलाकात में वकला की फ़राह बहबूद और बार्स के इंतज़ामी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर कानून ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वकला बिरादरी को बेहतर पेशा वराना माहौल और सहूलियात की फ्राहमी हमारी तरजीह है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बार रूम्स और लाइब्रेरियों की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। 9 मुंतखब नुमाइंदगान ने वफाकी वज़ीर को अपनी मुतालिका बार्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया।
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی صدارت میں صوبائی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں گورنر بلوچستان، اسپیکر صوبائی اسمبلی سمیت اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے شرکت کی۔ صوبائی کابینہ نے موجودہ عالمی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں سرکاری اخراجات میں کمی اور ایندھن کے بچت کے لیے اہم فیصلے کیے۔ تمام صوبائی وزراء، مشیران اور پارلیمانی سیکرٹریز 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے تمام ارکان کے تنخواہوں میں بھی 25% رضاکارانہ کٹوتی کی جائے گی۔ اسی طرح گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے وہ سرکاری افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ روپے سے زائد ہے وہ بھی رضاکارانہ طور پر 2 دن کی تنخواہ حکومت کو دیں گے۔ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں خدمات انجام دینے والے سرکاری ملازمین اس کٹوتی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ کابینہ نے سرکاری اجلاسوں اور تقریبات کے حوالے سے بھی نئے اصول متعارف کرانے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں طے کیا گیا کہ آئندہ تمام سرکاری اجلاس زیادہ تر ویڈیو لنک یا آن لائن طریقہ کار کے ذریعے منعقد کیے جائیں گے تاکہ غیر ضروری سفر اور اخراجات سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی وفود کے علاوہ کسی بھی قسم کے سرکاری عشائیے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیمینارز اور تربیتی پروگرامز کے انعقاد کے لیے متعلقہ محکموں سے پیش کی اجازت لینی ہوگی اور انہیں صرف سرکاری عمارتوں یا آڈیٹوریمز میں ہی منعقد کیا جا سکے گا۔ اجلاس میں سرکاری دفاتر کے اوقات اور طریقہ کار میں بھی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ کے مطابق صوبے میں سرکاری دفاتر ہفتے میں 4 دن کام کریں گے، تاہم بینکنگ اور دیگر ضروری خدمات فراہم کرنے والے ادارے اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ سرکاری دفاتر میں 50% عملہ کام کرے گا۔ کابینہ نے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کرتے ہوئے صوبے کے تمام اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں 23 مارچ 2026 تک بہار کی چھٹیوں کا اعلان کیا، تاہم واضح کیا گیا کہ امتحانات اپنے پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق منعقد ہوں گے۔ اجلاس میں سماجی تقریبات اور عوامی سرگرمیوں کے حوالے سے چند رہنما اصول بھی طے کیے گئے، جس کے تحت شادی بیاہ کی تقریبات میں مہمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 200 افراد تک محدود رکھنے اور صرف ایک ڈش پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح ہائی ویز پر گاڑیوں کی رفتار 65 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان رکھنے کی ہدایت کی گئی تاکہ ایندھن کی کھپت کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کفایت شعاری مہم کا آغاز چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے کر دیا گیا ہے، جہاں تقریباً 800 کے قریب آسامیاں ختم کر دی گئی ہیں تاکہ سرکاری اخراجات میں نمایاں کمی لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خود مثال قائم کرتے ہوئے اخراجات میں کمی کے اقدامات کر رہی ہے اور اس اقدام سے مسائل کو زیادہ مؤثر انداز میں عوامی فلاح و بہبود پر صرف کیا جا سکے گا۔ خوشحال سرسبز بلوچستان کی جانب نئے سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے عوام کے لیے جدید فیچرز پر مبنی الیکٹرک اسکوٹی اسکیم کا افتتاح کیا۔ کوئٹہ سے آپ کو دکھائیں گے سرفراز شیخ کی رپورٹ۔ صوبے کے عوام کے لیے گرین انیشیٹو کے تحت منعقدہ تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ڈیجیٹل پورٹل کے ذریعے ای اسکوٹی اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، طلبہ، عام شہری اور ملازمین کے لیے آسان اقساط پر الیکٹرک اسکوٹی کی فراہمی اور سفری سہولیات ہمارا مقصد ہیں۔ ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ جو ہمارے یوتھ ہے اس کے لیے ہم کو اس طرح کی اسکیم لے کر آئیں کہ وہ بآسانی کے اپنے ساتھ موبلٹی جو ہے ان کی آسان ہو جائے۔ ایسی اسکیم ہے کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ورکنگ وومن ہے یا جو ہمارے جنرل پبلک ہیں، اس سے کوئی بھی مستفید ہو سکتا ہے۔ سرسبز بلوچستان کی جانب پیٹرول سے بجلی تک ترقی کے نئے سفر کے آغاز پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی کمی کے باعث یہ سنہری موقع ہوگا کہ عوام اس اسکیم سے مستفید ہوں۔ فری رجسٹریشن بھی ہے کہ گورنمنٹ آپ کو رجسٹر کر کے بھی فری دے گی، اور سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوگی اس میں وہ پنک اسکوٹیز کی ہوگی۔ 15 ڈیز ہیں بلوچستان کے لوگوں آپ کے پاس کہ 15 دنوں کے اندر اندر اپلائی کر لیں، اور اس کے بعد پھر اس کی ایک پورے آن لائن طریقے سے اس کی ایک قرآن اندازی ہوگی۔ کسی قسم کی کوئی سفارش کسی کے لیے نہیں چلے گی۔ پہلے مرحلے پر الیکٹرک اسکوٹی اسکیم کے تحت پورٹل پر رجسٹرڈ ورکنگ وومن سمیت بلوچستان کے 20,000 صارفین کو اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی۔ موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں حکومت بلوچستان ماحول دوست پالیسیوں کو تقویت دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز کی خصوصی سحری نشریات رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں یوم علی کی مناسبت سے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت اور فضائل پر روشنی ڈالی گئی۔ کتیبہ ثنا رپورٹ کر رہی ہیں۔ رمضان پاکستان کی سحری نشریات کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی اور قصیدہ بردہ شریف کی روح پرور پیشکش نے ماحول کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر کر دیا۔ علماء اکرام نے 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے حیدر کرار داماد نبی کی شخصیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولا علی کی شخصیت نے تاریخ اسلام میں بہادری اور شجاعت اور فتوحات کے وہ سنہرے
बाप दर्ज किए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तबूक के मौके पर बहुत दूर जाना है, मदीने को छोड़ना है, और ये वो मौका है जुनैद भाई कि जब मुनाफिकीन की बहुत बड़ी तादाद मदीने में मौजूद है। उस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस शख्सियत पर ट्रस्ट किया, ना सिर्फ ट्रस्ट किया बल्कि यहाँ तक फरमाया कि तुम मेरे लिए वैसे हो जैसे मूसा के लिए हारून, और आपको मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, और आपको जो है वो मदीने की नियाबत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सौंपी। मेजबान मोहम्मद जुनैद इकबाल ने कहा कि आप रज़ी अल्लाह अन्हो की सीरत हमें बहादुरी, इल्म, सब्र और अदलो इंसाफ का दर्ज देती है, जबकि सहरी के लिए खुसूसी किचन सेगमेंट में मज़ेदार डिश तैयार की गई। सहरी नशरियात अज़ान फजर के साथ इख्तिताम पजीर हुई। कतीबा सना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लाहौर में यौम अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के सिलसिले में 21वें रमज़ानुल मुबारक का मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर अंदरूनी शहर में अपने कदीमी रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। आज़ादारों ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शहादत पर गिरियाज़ारी, नुहाखानी और मातम किया। शहर भर की मसाजिद और इमाम बारगाहों में छोटी बड़ी मजालिस हुई, जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका, दीन इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानियों और शुजाअत पर रोशनी डाली गई। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मरकज़ी जुलूस नेशतर पार्क से बरामद हुआ और अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया, ईरानिया, खरादर में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका रास्ते भर नोहे पढ़ते रहे। जुलूस के शुरका ने तिब्बत सेंटर्स पर नमाज ज़ुहरैन अदा की। शुरका ने सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात भी किए गए थे। खिलाफत राशिदा तक़वा की बुनियाद पर अदल, मुशावरत और एहतसाब पर कायम थी। 21 रमज़ान मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का यौम शहादत है। देखते हैं कराची से सुहेल जमाली की ये रिपोर्ट। चौथे खलीफा राशिद हजरत अली करमल्लाह वजहो का दौरे खिलाफत जहां इंसाफ और मसावात से इबारत था, वहीं उन्हें बगावतों और खवारिज के फितने का भी सामना करना पड़ा। खवारिज मुसलमानों का वो गिरोह था जिसने देहाती पसमंजर और इल्मी पसमानदगी के बाइस कुरान और हदीस की तालीमात की मनमानी तशरीह की। सहाबाए कराम और मुसलमानों की तकफीर, शिद्दत पसंदी और मजहबी जुनूनियत इस गिरोह की पहचान थे। जिहाद के नाम पर वो अपने मुखालिफ मुसलमानों के खून, माल और इज्जत को हलाल समझते और बेगुनाह खवातीन और बच्चों तक को कत्ल कर देते थे। 38 हिजरी में हजरत अली ने इराक में नहरवान के मकाम पर खवारिज को जंग में बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। इस शिकस्त खोदा जहनियत ने बदले की आग में खलीफा आदिल को शहीद करने का मंसूबा बनाया। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने 19 रमजान 40 हिजरी को कूफे की मस्जिद में हालत नमाज में हजरत अली करमल्लाह वजहो पर जहर आलूद तलवार से वार किया। 21 रमजान को इमाम ज़ुहद व इत्तका शहादत के मनसब पर फाइज हुए। खवारिज इस्लामी तारीख का वो स्याह बाब है जिसने मुसलमानों के आदिलाना शुराई निज़ाम खिलाफत राशिदा को खत्म करने में मकरूह किरदार अदा किया। ये दरअसल बद्दू, उजल और जाहिल लोग थे। इन तक दीन सही मानों में न इन्होंने समझा, न उसको समझ सके, बल्कि अपने अंदाज में अपने उस गलत तरीके को, गलत ताबीर को हक समझकर उन्होंने खिलाफत राशिदा का जो अजीम और बेहतरीन निज़ाम था, उस निज़ाम को भी उन्होंने उलट कर रख दिया। मयाना रवि के दीन इस्लाम को खवारिज ने मुख्तलिफ अदवार में अपनी इंतहा पसंदाना सोच से धुंधलाने की कोशिश की है। कि वो लोग जो दीन से निकल गए और आज भी ऐसे लोग हैं जो दीन और इस्लाम और उसूल और ज़ाब्तों को नहीं मानते बल्कि वो अपनी मनमानी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस्लाम ने जो सजा रखी है और हजरत अली मुर्तज़ा ने जो अमल किया उनके साथ, वो बिल्कुल आज भी करना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा ने रियासती और अवामी सतह पर खवारिज के फितने के खात्मे के लिए इज्तिमाई दानिश का सबूत दिया है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गिलगित में भी यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुलूस मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ निकाले गए। मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कसर अकबर कासिमपुरा से बरामद हुआ और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमामिया जामे मस्जिद पहुँच कर इख्तिताम पसीर हो गया। जुलूस के रास्ते यूनुस अमरे इंस्टीट्यूट और दोस्त फोरम के ज़ेरे इंतज़ाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सफारती, तालीमी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत हुज़ैफ़ा रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन अवामी रवाबित और सकाफ़ती तबादले दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने मुमकिन क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के पेश नज़र जामे कंटिजेंसी प्लान तैयार करने और हसास मकामात पर सैलाब से बचाव के लिए देर पा इक़दामात की हिदायत की है।
پشاور میں اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے محکمانہ امور کی ڈیجیٹائزیشن، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ویئر ہاؤسز کے قیام اور رمضان کے بعد دریائی بیڈز اور شہروں میں تجاوزات کے خلاف مہم شروع کرنے کی بھی ہدایت بھی کی۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید اور بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو پہلے ون ڈے میچ میں 8 وکٹوں سے ہرا دیا اور 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری بھی حاصل کر لی۔ ڈھاکہ میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے 4 کھلاڑیوں کو ڈیبیو کرایا، تاہم پوری بیٹنگ لائن فلاپ ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم 30.4 اوورز میں 114 رنز پر ہمت ہار گئی۔ صرف 4 بلے باز ڈبل فگرز تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ صاحبزادہ فرحان نے 27، ماں صداقت نے 18، محمد رضوان نے 10 اور فہیم اشرف نے 37 رن سکور کیے۔ شامل حسین 4 اور عبدالصمد بغیر کوئی رن بنائے پیویلین لوٹ گئے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے ناہید رانا نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مہدی حسن میراز نے 3 وکٹیں اپنے نام کیں۔ بیٹنگ کے بعد بولنگ میں بھی گرین شرٹس کی کارکردگی غیر تسلی بخش رہی اور بنگلہ دیش نے 115 رنز کا ہدف 15.1 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اوپنر تنزید حسن 67 رنز پر ناٹ آؤٹ بیٹر رہے۔ انہوں نے 5 چھکے اور 7 چوکے لگائے۔ سیف حسن 4 اور نجم الحسن شانتو 27 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی اور محمد وسیم نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ سیریز کا دوسرا میچ جمعے کو ڈھاکہ میں ہی کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز PDV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹرافی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ ٹرافی کا نام انفینٹی رکھا گیا ہے۔ PSL 26 مارچ سے 3 مئی تک 6 شہروں میں کھیلا جائے گا۔ 2 نئی ٹیموں کی شمولیت کے بعد PSL 11 میں پہلی بار 8 ٹیمیں شرکت کریں گی، جن کے درمیان 44 میچز کھیلے جائیں گے۔ حیدرآباد کنگزمین اور راولپنڈی پنڈیز PSL میں شامل ہونے والی نئی فرنچائزز ہیں۔ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگزمین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ فیصل آباد اور پشاور پہلی بار PSL میچز کی میزبانی کریں گے۔ ہر ٹیم لیگ مرحلے میں 10 میچز کھیلے گی۔ پلے آف 28 اپریل سے شروع ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ کی قیادت میں کھلاڑیوں نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے 8 برس بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے پر کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور کوالیفائر ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی پر کھلاڑیوں کی محنت کی تعریف کی۔ چیئرمین PCB نے ہاکی پلیئرز کو ملازمتیں دینے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ زخمی ہاکی پلیئرز کا علاج PCB کرائے گا۔ فٹنس اور میڈیکل کے حوالے سے ہاکی پلیئرز کو پورا سپورٹ کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے ورلڈ کپ میں پاکستانی ہاکی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قومی ہاکی کے کھلاڑیوں نے بھرپور سپورٹ پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ آپ رہیے گا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ۔